Hello guys, how are you? So once again welcome in the online classes of Sardar Patel Academy. This is lecture number 3 of English. In previous two lectures we have discussed about the introduction of English and the topics were what is English, what is grammar, what is alphabet, what is vowel, what is consonant, and what is a sentence. These are the topics which has been discussed in previous two videos. So this is the third video, and in this video we will discuss the sentence and its kinds. So already it has been discussed that what is a sentence. We had seen group of words. Group of words. We can say group of two are more than two words, which makes a complete sentence is called a sentence. दो या दो से अधिक वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस निकालता हो, कंप्लीट सेंस बनाता हो, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंटेंस। अर्थपूर्ण का मतलब है हमारा, कंप्लीट सेंस का मतलब क्या होता है कि उसका कोई ना कोई उचित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हम देखें when we are taking the words do, job, they, see, these are the words. This is a group of words. There are four words, but it doesn't make a complete sense, so we cannot consider it as a sentence. We cannot say that it is a sentence. Okay, let us see another group of words. Ram goes to Delhi. We are looking here that these are the words which have been arranged in a proper manner and makes a complete sense, so it will be called a sentence. We can consider it as a sentence. जब तक कोई वर्ड का ग्रुप कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, हम उसको सेंटेंस के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। In English, there are 5 types of sentences. We can classify the sentence into 5 types. Number 1 is assertive sentence. Assertive sentence can be called statement as well. इनको हम statement भी कह सकते हैं. Number 2 is interrogative sentences. Interrogative sentences also can be considered as questions. ये questions होते हैं. And third is imperative sentence. Fourth is exclamatory sentence, and fifth is operative sentence. Assertive sentence or statement also can be classified further two types, affirmative and negative. Assertive sentence को आगे भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, affirmative और negative. In the same way, interrogative sentences also can be classified two types, yes no type questions and question word type or WS type questions. इनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, yes no type questions और question word type questions. Clear? So these are the kinds of sentences. In this lecture you will learn how to classify the sentences. मैं आपको sentences दूंगा और easily आप उनको क्लासिफाई करने में सक्षम रहेंगे. So first of all, we will discuss about assertive sentences or statements. देखते हैं assertive sentence या statement होते क्या हैं. The group of words or the sentence that describes a fact
an occurrence, an event, etc. in positive or negative manner. In positive or negative manner are called assertive sentence. Sorry, is called assertive sentence or a statement. Clear? कहने का मतलब यह है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसा सेंटेंस जो डिस्क्राइब क्या करता है किसी घटना, किसी तथ्य या घटना का होना पॉजिटिव या निगेटिव मैनर में, घटना हुई या नहीं हुई उसको पॉजिटिव या निगेटिव मैनर में डिस्क्राइब करे तो वो क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस कहलाएगा या स्टेटमेंट कहलाएगा। सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड आल्सो पॉजिटिव सेंटेंस, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इफ एनी स्टेटमेंट इज showing affirmation or any fact is described in positive manner, the statement will be affirmative. अगर किसी घटना को हम पॉजिटिव मैनर में डिस्क्राइब करते हैं, सकारात्मक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहलाएगा। इन द सेम वे, इफ एनी स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ नेगेटिव मैनर, इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने बताया कि अगर कोई किसी इंसिडेंट का होना या किसी फैक्ट को पॉजिटिव मैनर में डिस्क्राइब किया जाता है तो सेंटेंस कहलाएगा अफर्मेटिव या पॉजिटिव। वहीं पे अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव मैनर में डिस्क्राइब किया गया है, नेगेटिव रूप में डिस्क्राइब किया गया है, तो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। चलो लेट अस सी थ्रू एन एग्जांपल। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। Ram is going to the forest. Ram is going to the forest. This is only a sentence in a positive manner, so it is a affirmative sentence. Clear? If any sentence will be negative, the words no, not, never will be used. नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? नो, नॉट, नेवर। अगर किसी फैक्ट में नो, नॉट, नेवर या किसी सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर का यूज होता है तो सेंटेंस कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। देखते हैं। राम इज नॉट गोइंग to the forest. Ram is not going to the forest. Word not is there in the sentence, so it will be a negative statement. इसको क्या कहेंगे? Negative statement कहेंगे। Clear? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Sita is cooking food. Sita is cooking food. Let us see one more example. They never play cricket. बताइए कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव? हमने देखा यहाँ पे ना तो नो है, ना ही नॉट है, ना ही नेवर है, तो ये क्या होगा? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। वहीं दूसरे सेंटेंस में देखते हैं तो नेवर वर्ड का यूज किया गया है। हम सीधी तरीके से समझ जाएंगे क्या है? दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं। अब now we will discuss about interrogative sentences.
इंट्रागेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इनको? स्टेटमेंट भी कहते हैं। सॉरी, स्टेटमेंट बोल दिया मैंने, इसको क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंस जो आते थे वो स्टेटमेंट में आते थे, वहीं पे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को क्या कहेंगे? क्वेश्चंस भी कहते हैं। लेट अस सी द डिफरेंस ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। आस्क द क्वेश्चन। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है वो क्या कहलाता है? एक इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाएगा। Interrogative sentences can be also classified in two types: S-no type questions and question word or WS type questions. इनको भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस को भी हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन? S-no टाइप and WH type questions. WH type are question word. Clear? The questions whose answer we can give in two words, yes or no. In only yes or no, that will be called a S-no type question. S-no type question. जैसे ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर के हमारा हम यस या नो में दे सकें वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहता होगा, एस-नो टाइप होगा। जैसे देखते हैं, आर यू रेडी टू गो? आर यू रेडी टू गो? क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन यस और वी कैन आंसर इट नो। क्लियर? So this type of answers will be called S-no type questions. Let us see one more example. Do you agree with me? क्या आप मुझसे सहमत हैं? We can answer. If you want to answer positive, we can say yes. If you want to answer negative, we can say no. इस क्वेश्चन का आंसर भी हम yes या no में दे सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? S-no टाइप क्वेश्चन होगा, S-no टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेट्स टॉक अबाउट द WH टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम S-no टाइप पे नहीं दे सकते, S-no वर्ड में नहीं दे सकते, उनके लिए हमको कुछ डिटेल देनी पड़ती है, वो क्या होते हैं? WH टाइप क्वेश्चन होते हैं या क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जैसे somebody asked you, where do you live? Where do you live? Can't answer this question in yes or no. Definitely you have to answer in detail. Where do you live? You will tell, I live at Lakhimpur, I live at this place, I live there. Definitely you have to provide some detail. In these type questions, WH words come start of the sentence. WH words comes start of the sentence. तो ऐसे वर्ड्स WH टाइप जो वर्ड्स होते हैं वो इन क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, इनको हम इजीली पहचान लेंगे। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? हमको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। डिफरेंस, let's talk about the difference between these two type of sentence. S-no type questions doesn't take question words. These type of sentences begin with the helping verb, with the auxiliary verb. Clear? As
is the helping verb. We will not use question word is S no type questions. हम जान जाएंगे जैसे ही देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड लगा है और हेल्पिंग वर्ब लगी है स्टार्ट में, हम जान जाएंगे क्वेश्चन कैसा है, एस नो टाइप है। वहीं पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड लगा है तो डेफिनेटली हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव तो हो गया बट ये अफर्मेटिव है, सॉरी ये एस नो टाइप क्वेश्चन है या डब्ल्यूएस टाइप है। तो अगर डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएस टाइप वर्ड पाते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड पाते हैं स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वहीं पे हमने पाया कि वहां हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखी गई है, स्टार्ट में रखी गई हो, तो सेंटेंस कैसा होगा, एस नो टाइप हो जाएगा। सो we have discussed about affirmative sentence, negative sentence and two types of interrogative sentence, SR no type question and WS type question.